Hello, everybody. Today we are going to learn chapter number 4th, Mughal Empire Establishment and Extension. It is from standard 7th, subject Social Science semester 2. So I welcome you all and let us learn the lesson. Fourth lesson, Mughal Empire Establishment and Extension. Previously in this standard we have seen different dynasties, different great rulers, those who ruled over India for many years. After that there was a dynasty called Mughal dynasty that ruled in India. So let us learn this lesson to understand the history about the Mughals, how they established and how they expanded their empire. Here in the picture you can see the famous monuments of India, Red Fort, Taj Mahal and few others. A glance of Mughal architecture which were built by the Mughal kings. Same as of your age. One of student was watching a program on 15th August on the television. He saw Red Fort. He asked for the detail about the Red Fort, that who built and how beautiful it is carved and architectured. So the teacher provides necessity information about other monuments as well as the kings, those who have built this kind of monuments, and that information is there in lesson number 4th as we are going to learn. So let us learn the details about it. Look at the second paragraph. Delhi was under Ibrahim Lodi's rule during that time and Babur ruled in Kabul, Afghanistan. Babur was the ruler of Mughal dynasty. He attacked Delhi in 1526 CE. Ibrahim Lodi was defeated by the Babur's well-equipped army in the Battle of Panipat. Now how all it started. So it was king named Babur जो काबुल अफ़गानिस्तान वहाँ से बिलोंग करते थे. He attacked Delhi in 1526 and in the Battle of Panipat उन्होंने इब्राहिम लोदी जो यहाँ पे राज कर रहे थे इंडिया में उनको हराया और फिर मुग़ल डायनेस्टी का कारवा शुरू हो गया. This brought to an end of an Sultanate age and established the Mughal rule. In the beginning, the Mughals ruled near Delhi. Babur won many battles and his descendants gradually extended the empire. Let us learn about the incidents that occurred during the Mughal age and know more about the administration and social life of that time. So we got the information about the establishment of Mughal empire जिनकी शुरुआत बाबर ने की थी. बाबर या बाबर जो काबुल अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी जो सल्तनत एज का लीडर था उनको हराया और मुग़ल एस्टेब्लिशमेंट की. इन द मेन इवेंट्स ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, द फर्स्ट वन इज़ बाबर, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जो 1526 से लेके 1530 तक रूल करते रहे इंडिया में. In 1527, he fought battle with the brave Rana Sangat Kanwa, in which Babur defeated his army equipped with cannons. 1530 में बाबर की डेथ हो गई. Babur fell ill and died. He fought many battles with a strong foundation of Mughal Empire and gained control over areas near Delhi and Agra. He emerged victorious in the most of the battles that he has fought. Now after Babur उनके जो बेटे थे हुमायूं, let us see about हुमायूं, जिनका 2 टाइम पीरियड है रूल करने में, 1530 से लेके 1540, उसके बाद 1555 से 1556. These are the 2 time periods
of Humayun. Humayun ascended the throne of Delhi after Babur. According to the father's will, the kingdom was divided and each of the brother inherited one province. He retained Delhi. Humayun had to struggle a lot against his brother Kamran and other Afghans. Humayun was defeated twice by Sher Shah and he had to escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of the king of Amarkot. Humayun regained Delhi from the successors of Sher Shah. In the main events of Humayun, बाबर जो उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके बाद हुमायूं को राजा बनाया गया. आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज़ उनकी थी, जो भी एरियाज़ उन्होंने जीते थे, वो सारी बाबर के जो लड़के थे, उनके जो सन थे, उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जिनमें दिल्ली हुमायूं के झोली में आई और वहाँ पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया. पर उनके ही ब्रदर्स कामरान और दूसरे जो लीडर्स थे अफ़गान से, उनके खिलाफ़ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हुमायूं को. ही वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर शाह. और ऐसा ही अंदर अंदर जो ब्रदर्स लड़ते रहे, जिनका फ़ायदा दूसरी डायनेस्टीज़ के किंग ने भी उठाया, जिसमें शेर शाह ने उन्हें 2 बार हराया और अपना लाइफ बचाने के लिए उन्होंने 15 साल कहीं जाके छुपे रहे. और उसी टाइम पीरियड पे अकबर का भी जन्म हुआ. हुमायूं रिगेन्ड दिल्ली फ्रॉम द सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह. नाउ शेर शाह जो सू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 1540 से लेकर 1545 तक, 5 years in the absence of Humayun and other leaders, strong leaders of मुग़ल, उनके एब्सेंस में सू डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट भी हो गया और कुछ साल उन्होंने भी रूल किया इंडिया में. शेर शाह सूरी was an Afghan leader who had progressed on his own. He defeated Humayun twice and therefore established the Suu dynasty in Delhi. After gaining control over Delhi, he won many important other battles. He then extended the empire from Kabul to Bengal and Malwa. He is known as the reformer in history. After Sher Shah, the Mughal dynasty re-established in Delhi. शेर शाह के बाद सू डायनेस्टी में पावरफुल किंग्स ना होने के कारण वापस मुग़ल डायनेस्टी के किंग ने अपना राज वहाँ इंडिया में, दिल्ली में एस्टेब्लिश कर दिया. Now, the information about Akbar. Akbar, we all know, we have heard his name. He is a very famous king, not only due to his bravery, but उन्होंने आर्ट, लिटरेचर और कई ऐसी अलग अलग जगह पे बहुत ही बेहतरीन काम करके ये नाम कमाया है. Akbar was just 13 when his father Humayun passed away. He was very young, so Bairam Khan, a faithful minister of Humayun, brought him up as a guardian and took care of the administration of Akbar's behalf, on Akbar's behalf. अकबर जब 13 साल के ही थे तब उनके पिताजी हुमायूं की डेथ हो गई. सो अब कोई राजा नहीं था, तो उनकी एब्सेंस में, हुमायूं की एब्सेंस में उनका एक मिनिस्टर था बैराम खान, जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें वो ध्यान रखता था. साथ साथ में छोटा जो अकबर था उनको भी बड़ा करने में उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था. सारी स्किल्स सिखाने में, एजुकेशन देने में, सारी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था. हैमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूर established his rule in Delhi when Akbar was in Punjab. With the guidance of Bairam Khan, Akbar defeated Hamu in the Battle of Panipat. When Akbar was young and he was brought up in Punjab, during that time, Hamu, one of the leader of Sikandar Sur dynasty,
सू डायनेस्टी का एक लीडर जिनके खिलाफ, जो वहाँ पे रूल कर रहा था, उनके खिलाफ अकबर ने बैराम खान की हेल्प से, उनके गाइडेंस में हेमू को हरा दिया बैटल ऑफ पानीपत में. नाउ एज देयर वर नो वन टू लुक आफ्टर इन द मुगल डायनेस्टी, बैराम खान बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई नहीं था. सो व्हेन अकबर गॉट मैच्योर्ड, तो उन्होंने बैराम खान को हज के लिए भेज दिया. एंड इन द मिड वे बैराम खान वॉज किल्ड ऑन गोइंग टू हज. अकबर ने चित्तौड़, रांदम्बोर, दैन काफ़ी और भी बैटल्स जीते. राणा प्रताप के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी बैटल्स किए. फ्रिक्वेंट बैटल्स वर फॉट बिटवीन दैम. Akbar's empire extended during the time period from 1585 to 1605, जिनमें उन्होंने कांधर, कश्मीर, काबुल और भी कई एरियाज़, खानदेश, अहमदनगर इन साउथ, जो कॉन्कर्ड कर लिए थे. वी ऑल नो द हिस्ट्री अबाउट महाराणा प्रताप एंड अकबर. महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के एक किंग थे, जो काफ़ी बहुत ही ब्रेव माने जाते थे, और उसी के कारण भले ही अकबर के पास लाखों सोल्जर्स थे, फिर भी वो राणा प्रताप के नज़दीक नहीं जा पाता था. महाराणा प्रताप के पास तो कुछ 1000 ही सैनिक थे, सोल्जर्स थे, फिर भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ और उनकी ब्रेवरी के खिलाफ अकबर कभी उनके सामने नहीं जा पाया, उन्हें हरा नहीं पाया. There was a lot of disorder during the last days of Akbar's rule as Prince Salim revolted. Later on, Salim adopted the name of Jahangir and ascended the throne. As we started from Babur, उसके बाद हुमायूं, then we have seen the detail about शेर शाह, then अकबर. Now अकबर का भी जो बेटा था प्रिंस सलीम, जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके जहांगीर कर दिया था, जिनके बारे में आगे हम सीखेंगे. सो these were the main events. Now let us see how the administration policies and the social life of people were during that time. Relations of Mughals with other rulers. We all know that Humayun had to escape for 15 years, and during that time period he stayed with the Hindu rulers और उन्हीं के शरण में वो रहता था. एंड दैट्स वाई अकबर के जो रूलिंग स्टाइल है उसमें हिंदू कल्चर का भी स्टाइल उनमें दिखता है, क्योंकि उनके पिताजी ने काफ़ी सारा टाइम हिंदू रूलर्स के बीच में ही बिताया था. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. He knew that वो लोग जानते थे कि अगर राजपूत हिंदू रूलर्स की अगर हम इग्नोर करेंगे तो हम कभी इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. तो इसी के लिए राजपूत रूलर्स, सिसोदिया, दैन जो भी और रूलर्स थे उनके साथ में उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे. एंड अकबर वॉज अ पर्सन हु वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो ऐसा नहीं था कि खुद के बारे में ही सोचता रहता था. ही लुक आफ्टर द पीपल ऑफ हिज किंगडम एज वेल एज ऑल अदर रूलर्स ऑल्सो, जिनके कारण वो सारे लोगों में काफ़ी फेमस भी था. जो भी उनके खिलाफ होता था उन्हें अकबर के साथ युद्ध करना पड़ता था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम द रूलर्स ऑफ सिसोदिया राजपूत डिड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ अकबर एंड हैड मैनी कॉन्फ्रंटेशंस. काफ़ी बैटल्स उनके लोगों में भी होती रहती थी. नाउ ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस. ट्रेडिशन यानी कि प्रणाली जो पहले से चलती आ रही थी. इनहेरिटेंस. हेरिटेंस मीन्स राजा का बेटा ही राजा बने, ये पॉलिसी. तो जनरली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इन मुगल डायनेस्टी ये होता था कि
हुमायूं जो थे उनका बेटा अकबर वो राजा था। तो ये जनरल उस टाइम पे रूल था कि जो नेक्स्ट किंग बनेगा वो अभी जो चल रहा है वही किंग वो डिसाइड करता है कि अगला राजा कौन बनेगा। जनरल रूल ये था कि राजा के जितने भी बेटे हैं उनमें से सबसे बड़ा लड़का ही नेक्स्ट किंग बनेगा, और जो राजा की प्रॉपर्टीज़ है वो सारी दूसरे लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। और उसी के कारण बाबर की प्रॉपर्टी के कारण ही हुमायूं को अपने ब्रदर्स कामरान और दूसरे अफ़गान लीडर्स के साथ काफ़ी बैटल्स करने पड़े थे, स्ट्रगल करना पड़ा था। एंड ब्रदर्स would quarrel with each other, and whoever won conquered the seat or conquered the throne of दिल्ली। ये होता था इनहेरिटेंस में। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आज जो हम स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं, तालुकास देखते हैं, छोटे बड़े विलेजेस सिटी देखते हैं, सो दैट सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द मुग़ल टाइम। उससे भी पहले स्टार्ट हुई थी, बट अकबर ने जो स्टार्ट किया था वो था सूबेदारी सिस्टम। सो लेट अस लर्न अबाउट दैट। द सूबेदारी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड। अकबर डिवाइडेड हिज किंगडम इंटू 15 सेक्शंस। ईच सेक्शन वॉज नोन एज सूबा और प्रोविंसेस। जैसे कोई किंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा स्टेट की सारी बातें उन्हें पता हो और पूरे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर पाए। सो ड्यू टू दैट किंग डिवाइड्स द स्टेट इनटू स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो सूबेदार होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखता है। सो इससे राजा को रूल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज कॉल्ड एज प्रगना। तो सबसे जो छोटा विलेज या एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल लेवल पे होता है वो प्रगना कहा जाता था। द हेड ऑफ ईच प्रगना वॉज कॉल्ड आमिर, who would collect the revenue. The Gram Panchayats in village and head of that time was known as Patel, Chaudhary or Mukaddam. Thus, during that time, various executives were appointed to look after the policies. During Akbar's reign, pilgrim tax was not levied. Means जो भी यात्रा धाम थे वो उस टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता था किसी भी चीज़ पे, क्योंकि अकबर ने पिलग्रिम टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। सो देयर वर ह्यूज क्राउड्स इन द पिलग्रिम प्लेसेस। अकबर वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट टॉलरेंट एंड बी रिनोल्ड किंग अमंग ऑल द मुगल रूलर्स। ही रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस मीट इन द प्रेयर हॉल ऑफ सिकरी, वेयर द लीडर्स ऑफ ऑल द रिलीजियंस वुड गैदर एंड दे विल डिस्कस something for the betterment of the humanity. In Akbar's court there were 9 gems. Look at the second paragraph, the 9 gems of Akbar, जिसमें सबसे पहले टोडरमल द रेवेन्यू कलेक्टर, a minister, मान सिंह द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी, अबुल फजल द हिस्टोरियन एंड राइटर ऑफ एन अकबरी और एंड अकबरनामा। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हु इज़ द राइटर ऑफ एन अकबरी और या फिर अकबरनामा, इन दोनों का राइटर कौन है। तो अबुल फजल इज़ द नेम। तानसेन फेमस सिंगर जिनके बारे में हम सब जानते हैं। मुल्ला दो पियाज़ा द क्लेवर एंड जॉली कॉर्डियर। महेश दास बीरबल द क्विक विटेड कॉर्डियर एंड ट्रिकस्टार। हमाम द फेमस वैद फिजिशियन। फैज़ी the renowned poet, and Abdul Rahim the Hindi verse writer. Here you can see in the picture the royal court of Akbar. So in this part we will see up to here. I hope you must have understood the details of lesson number 4. Thank you very much for watching the video. Goodbye.